Good evening. It's a pleasure to welcome you all on our Friday evening talk on a very interesting topic, the youth's role in a new India. The words are very important. Youth role, not only India, but a new India. And he's a very, very popular person, so lots of you have attended his programs. Some of them have seen his YouTube videos or attended his talks. So nonetheless, as an important duty, I'd like to, briefly introduce Mr. Gaurav Pradhan, who is a really highly accomplished person, a data scientist, advisor, digital strategist, a business transformation, and a professional speaker. And a lot of you have either attended his workshops or listened to his talks. And as I said, he is a highly accomplished data scientist, strategic leader with an expertise in predictive analytics, business intelligence, and extensive experience leading business strategy and system initiatives in a rapidly growing digital organizations. He helps organizations with information technology, vision, road mapping, strategy, and execution. He has worked across different countries, across different platforms. He's experienced team builder with exceptional proficiency in aligning and leveraging resources and investments with the strategic, tactical, and operational needs of the organization. He leverages technology for competitive advantage, driving improvements for both top and bottom lines. And for more than 23 years, he has developed good blend of technology, strategy, research and solution consulting experience, and he has worked across the world, as I mentioned, different countries, including South Africa and US, and polished his skills as an experienced strategist with an aptitude for using innovative technology to deliver comprehensive solutions in a fast-growing, high-volume industries. And he has an outstanding record of accomplishment of developing talent and working at the board level to create and direct successful technology operations in multiple industries. And as many of you have attended his different kind of workshops, I'm not going to get into that area, make my thing very small, but nonetheless, for this accomplished person, he has been, awarded, and he has got a lot of accolades, including the Hind Ratan Award 2010 by our Union Minister of the government. And in South Africa, he was selected one of the top visionary CIO by Gartner. And then the Huffington Post listed him as the 10th in the global top 100 most social CIOs in Twitter in 2015. And as many of you know, at present he conducts the GP Masterclass on digitalization, big data, cloud, mobility, social media, and future CIO. So anyway, before handing over to Dr. Gaurav Pradhan, on behalf of AMA and all of you, I'll just welcome him with a flower and a memento. કેમ છો? Sure. Very good evening to all of you. And it's literally an honor to stand in an auditorium of Ahmedabad Management Association. I just came to know that Dr. Sarabhai has been instrumental in bringing up this organization in 50s. So it gives a lot of privilege and a lot of, I would say, I'm humbled to stand in such a place and got some honor from AMA. Thank you very much, sir. Thank you, AMA, and thank you all. Ahmedabad always excites me a lot. Last time I was here, about a month back, I had to be rescued from the session because it was almost a stampede kind of situation. So my team members, they rescued me. हिंदी फिल्म देखी है ना कि
पत्नी है, पति को लोग ले जा रहे हैं, पत्नी को कोई पूछ नहीं रहा, और मतलब उससे छीन के ले जा रहे हैं, बस बिल्कुल वैसे ही सीन हो गया था. माई वाइफ वॉज फर्स्ट टाइम शी केम, एंड द मोमेंट आई सेड हेलो टू हर, आई मीन शी केम लेट. उसके बाद मुझे पता नहीं वो गई कहाँ. मुझे तो उठा के जब गाड़ी में बिठाल दिया इन लोगों ने, तब पता चला वो साथ में बैठी हैं. So thank you, Ahmedabad. You all always, Gujaratis have always been a very jolly fellow, and right now, thanks to you, you have conquered the world. हमारे दिल्ली पे तो अधिकार कर ही लिया है, कोई बात नहीं, अच्छा है. यूके नहीं कहेंगे, यूके कुछ और लोगों ने करा है, वो बात की चीज़ है. हम ही हैं, लेकिन हमारे ही लोगों ने करा है. लेकिन हाँ, इंस्ट्रक्शन गुजरात से ही आए थे. टॉपिक दिया गया है यूथ रोल इन न्यू इंडिया. I will talk about this. I will talk something you want, and then open house Q&A. You can ask me any question you want to. Why we picked up this topic? Today, if you really see the global scenario, the geopolitics and world over, be it from America to Australia, opportunities are shrinking. What we used to say in our time in early 90s or late 80s, American dream, that dream is over. And the dream has come today to India, where no matter what area of specialization or studies you have, you can achieve success. You be a doctor, I mean, how many literally people talked about forensic studies 10 years back or 5 years back? क्राइम होता था, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करता था, who has been trained on law and order only. He is not professionally trained in forensic, but he is supposed to do the forensic investigation. He was supposed to do. Today you have 2 forensic universities in Gujarat itself. And I am privileged that my daughter is one of the students there doing her master's in forensic psychology. So opportunities are opening up for youth in India, no matter what you do. वड़ा पाव का स्टॉल भी है, IAS भी है, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं. Look at ISRO, heaviest rocket, 36 satellites in one go. And who is the customer? The first world, who at one point of time refused to give us the cryogenic engine. They are our customer. So opportunities are there for today's youth in everything, but this is not what I am here for. You all know the opportunities what are there. You all know what you can do. Gujarat, I am standing in Gujarat. I don't have to teach the youth about entrepreneurship here, because the Gujarati's DNA is about entrepreneurship. अमित, दशहरे पे 300 करोड़ का फेफड़ा और जलेबी खा जाते हो यार. उन लोगों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिखाऊंगा क्या? सोचने वाली बात है. मतलब कितना 40 टन सोना खा गए दिवाली पे. मतलब कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भाई. सोना आप ले जाते हो, फेफड़ा, जलेबी आप ले रहे. जलेबी मेरी फेवरेट है, वो भी आप खा लेते हो 300 करोड़ की. कोई सोच सकता है कि यार 20 घंटे में, 14 घंटे में 300 करोड़ की जलेबियां खा गई. दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, श्रीनगर में जाता हूँ हमेशा. अभी लास्ट टू लास्ट टाइम जब जुलाई में मैं श्रीनगर गया था, सारे गुजराती.
2 बेल्ट हैं वहाँ पर सामान उठाने की, दोनों बेल्टों पे गुजराती बैठे हुए थे, फेफला झापला खोल के बैठ गए थे सब साथ में। श्रीनगर में जहाँ देखो, कश्मीर में जहाँ देखो, जहाँ ग्रुप दिख जाए समझ लो गुजराती, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, 100% हिट रेट होता है। सो टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू गुजरातीज इज़ नॉट माई एजेंडा, दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टीच यू, दैट इज़ द मेड इन DNA आउट हियर। अडानी भाई स्कूल ड्रॉप आउट, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाऊंगा मैं क्या? धीरू भाई अंबानी, एक नहीं है बहुत है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इनके आगे की दुनिया नहीं दिखती है। हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, लेकिन भारत के इतिहास को उठा के देखोगे तो इन जैसे हजारों लोग आपको मिलेंगे जो इनसे कहीं ज़्यादा अचीव कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इन लोगों को डॉलर टर्म में गेज करते हैं। नेटवर्थ कितनी है? एलन मस्क $300 बिलियन, एक्स $200 बिलियन, वाई $200 बिलियन। हमारा बेंचमार्क वेस्टर्न है, वैल्यू बेस्ड नहीं है। भारतीय सनातनी जो बैरोमीटर है वो वैल्यू बेस्ड है। पटेल भाई खरबों का धंधा करते हैं, लेकिन पटेल भाई ने 10 धर्मशाला बनाई है। पटेल भाई के 4 स्कूल चलते हैं जहाँ पैसे नहीं देने पड़ते। पटेल भाई के 2 कॉलेज चलते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने कितने करे? बिल गेट्स ने कितने करे? योग आश्रम चला रहे हैं। सो अगर वी पिक अप द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, वी विल फाइंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स may not be matching the dollar term with the global or the Western leaders, but they have a value system, and that value system comes from India. And this is what I want to talk to the youth, that no matter how successful you are in life, no matter what your career is, please don't leave your value system, because now India is growing back. The glory of India is coming back, and the people who carry the value system would only be appreciated in coming time. Don't chase money, chase your name. My father told me when I was in college. 2013 I left a 100 crore company in one go, in one night, and I said, अब इंडिया जाते हैं, राष्ट्र की सेवा करेंगे। 2 एकड़ के फार्म हाउस से निकल के 2 बेडरूम का 14th फ्लोर पे घर पे आ गए। नो प्रॉब्लम, बट द लाइफ हैड टू बी वैल्यू बेस्ड। नाउ हाउ टू बी ए वैल्यू बेस्ड? क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यूज? I only give you very simple mantra for the youth. I mean, वैसे तो यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं बहुत मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए तो मैं यूथ हूँ, लेकिन मेरे लिए यूथ कौन कितने हैं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। Love you, my sister. That's a way. Great. Good. Character, consistency, and credibility. You have to remember only 3 things in your life as a youth, which had to go till your last breath. Character, consistency, credibility. Character क्या है? Character वो है जिससे हम, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे संस्कार हैं। चरित्र हमेशा, भगवान श्री राम को अगर आप पढ़ेंगे, 2 तरह हैं पढ़ने के। एक तरीका तो वो है कि हम रोज़ सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते, रामायण खोल लेते हैं, 1 पन्ना रोज पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हमें पुण्य मिलेगा, 4 श्लोक रट लिए, उसके बाद सास बहू का सीरियल देखने बैठ गए।
उसमें भी गुजरातियों की महारत है, कम नहीं है, वो वहाँ पर भी है। दूसरा तरीका है पढ़ने का कि रामायण और जो शास्त्र हैं उसमें क्या सिखाया है जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। भगवान श्री राम का जीवन केवल 2 चीजें थी, धर्म, धैर्य और कर्तव्य। भगवान श्री राम के जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। आज के बच्चों में धैर्य नहीं है। भूख लगी है तो हमें अभी खाना चाहिए। नतीजा क्या है कि हमारी किचन, जो कि जैसे आप अगर किसी नए घर में जाओ तो आप सबसे पहले घर का कौन सा हिस्सा शुरू करते हो? किचन करते हो ना। सबसे पहले आप गैस लगाते हो, भाई चाय बन जाए, खाना बन जाए। ड्राइंग रूम में सोफा तो नहीं लगाते हो। और जब आप किसी घर से शिफ्ट होते हो तो जो सबसे अंतिम कोना घर का खाली किया जाता है वो किचन होती है। लेकिन क्योंकि आज के बच्चों में धैर्य नहीं है, आपने अपनी किचन आउटसोर्स कर दी है। और ये आउटसोर्सिंग बहुत खतरनाक है, न केवल वैल्यू सिस्टम के लिए बल्कि आपकी सेहत के लिए भी। सो धैर्य रखना सीखो। भगवान श्री राम से धैर्य, जब भगवान श्री राम को बोला गया सुबह राज तिलक होगा, राजा बनेंगे, रात को माता कैकेयी ने बोला भैया तुम्हें तो जाना पड़ेगा, और वो वनवास चले गए। उनके चेहरे पे राजा बनने की उत्सुकता नहीं थी, वो तावलापन नहीं था। और जब जंगल जाने की बात आई तो परेशानी नहीं थी। धैर्य उसी को कहते हैं। पर अगर श्री राम के जीवन से सीखो तो अयोध्या छोड़ने से लेके अयोध्या वापस पहुंचने तक 14 वर्ष लगे। और ये 14 वर्ष का सफर था, कठिन सफर था। वो निकले थे युवराज रामचंद्र के नाम से और वापस पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से। कहने का अर्थ यह है कि 14 साल का सफर ने उन्हें युवराज रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। आज आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं, बोलते हैं व्हाट इज अ लाइफ इफ यू डोंट ड्राइव अ मर्सिडीज एट 25। If you drive a Mercedes at 25, you will not understand the value of Mercedes. There had to be a time in life when everything good looks good. Before time, nothing is, it spoils. So, बहुत important है युवाओं के लिए कि धैर्य लाओ। भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें यूनिकॉर्न का निर्माण करना है, अगर हमें भारत में मार्क जुकरबर्ग चाहिए, अगर हमें भारत में बिल गेट्स चाहिए, अगर हमें भारत में इस तरह के लोग चाहिए, तो धैर्य ज़रूरी है। गौतम अडानी तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे ना, एक दिन में मिल गया क्या सब उसे? धैर्य था ना। आज हम में धैर्य नहीं है। पैसे को कितनी जल्दी कमाना है हमारा मकसद वो है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम इनोवेट नहीं करते। हम ट्रेडिंग कंपनी खोल के चाइना से माल मंगा के यहाँ भेज देते हैं ताकि हमारा कट निकल आए।
मेरे बीच में यहाँ पर एक मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, धवल की कंपनी है रैपिड रेडियो। ये बंदा चाहता तो चाइना से सारे कंपोनेंट मंगा के भारत में उसको वाइट लेबल करके RFID टैग्स आराम से भारत में बेच सकते थे, जैसे कि बड़ी बड़ी लोग करते हैं। लेकिन गुजराती शुड बी प्राउड कि इन्होंने अपनी रिसर्च सेट करी और फ्रॉम PCB टू फाइनल फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विस he do right here in Ahmedabad. He is not dependent on China. ये जो धवल मेरे ख्याल से 20 साल का रन है आपका, 16, ये 16 साल का रन, आप अंदाज लगाओ इसमें कितना धैर्य है। चरित्र का निर्माण तब होता है जब धैर्य समझ में आने लगता है धैर्य किसे कहते हैं। और चरित्र का निर्माण हमेशा माता करती है, पिता नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा माँ को रामायण के रूप में देखता हूँ, क्योंकि माँ अपनी गोद में बच्चे को बैठाल के हर वो चीज़ दिखाती है जो माँ देख रही है। पिता को मैं गीता बोलता हूँ, क्योंकि पिता कंधे पे बिठाल के बच्चे को हर वो चीज़ दिखाना चाहता है जो पिता नहीं देख पाया। और बाकी राजनीति रही वो तो चाणक्य हमारे सिखा देते हैं, उसके लिए चाणक्य पढ़ लो। तो चरित्र निर्माण सबसे जरूरी है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। जो लोग अपनी बात, आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पे रोज बदलता है या मौका देख के बदलता है या अपॉर्चुनिटी देख के बदलता है, आप उस पर ट्रस्ट करोगे? आज वो आपके साथ है, कल कहीं और मजे आ रहे हैं तो उसके साथ है। ऐसे लोगों पे तो ट्रस्ट नहीं करोगे। जय आपके सोशल मीडिया में देख लीजिए, भरे पड़े हैं लोग। कल मोदी के नाम से बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए अब उन्हें लगा अब तो हम मोदी को एडवाइस कर सकते हैं, तो सारे एडवाइजर बन गए। एक फ्रेज मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छी डेफिनेशन में लेना, उसको गलत मत लेना। जिनसे 70 किलो की बीबी और 26 किलो का बच्चा नहीं संभलता ना, वो भी मोदी को एडवाइस देते हैं आज की डेट में। क्या इन लोगों पे आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपको मोदी का भक्त होना जरूरी है पॉलिटिक्स में। आप राहुल गांधी के भक्त हो, उसके रहो, उसको डिफेंड करो, उसके साथ स्टैंड करो, उसकी बातों को लोगों को समझाओ। बहुत इज्जत करता हूं उन लोगों की मैं, क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी है। वहां पाला देख के कोई नहीं बदलता। तो जब आपका चरित्र निर्माण सही है, जब आपके कार्य में कंसिस्टेंसी है, तो जो चीज आप गेन करते हो, जो पूंजी आप इकट्ठी करते हो, उस पूंजी को क्रेडिबिलिटी कहते हैं। अगर आपके पास काम भी नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको कोई सहायता के लिए कभी मना करेगा ही नहीं। लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ना, छोटी चीज़ें हैं। आज हो गया, कल किसने देखा है? चरित्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी। अगर ये 3 शब्द आज का युवा गांठ बांध के रख ले, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप ही में से अगले अदानी भी निकलेंगे, अंबानी भी निकलेंगे, टाटा भी निकलेंगे, जुकरबर्ग भी निकलेंगे, स्टीव जॉब्स भी निकलेंगे।
स्टीव जॉब की लाइफ देखो, बहुत लोगों ने कहा विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एप्पल प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा, दुनिया भर की चीज़ें. ही स्टिल इंसिस्टेड आई विल स्टे ऑन एप्पल प्लेटफॉर्म. रिजल्ट, it is the richest company with a revenue touching 1 trillion. Sorry, asset based, I think. But it is valued more than $1 trillion. So, नए भारत को आज ऐसे युवा चाहिए जिनका चरित्र हो, कंसिस्टेंसी हो, क्रेडिबिलिटी हो. क्योंकि भारत को विश्व गुरु ना मोदी बना सकते हैं, ना मैं बना सकता हूं. भारत को विश्व गुरु भारतीय माताएं बना सकती हैं. क्योंकि चरित्र जो पहली सीढ़ी है वो मां से आती है. इसलिए जो हमारे महिला ऑडियंस में हैं, यंग मदर्स या अबाउट टू बी मदर, और मतलब अभी गर्लफ्रेंड है, आगे जाके तो मदर बनेंगी, कोई हार्म नहीं है उसमें. आपके ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व है, मेरे ऊपर नहीं है. मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी. मैं तो अब टहलता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मज़े आते हैं आप लोगों से मिलने में, और कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है. पुराने चेहरे दिख जाते हैं, कोई 4 साल बाद दिखता है, कोई 5 साल बाद दिखता है, तो अच्छा लगता है मुझे. लेकिन आप माताओं के ऊपर नए भारत की बुनियाद रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज. आप जिस फील्ड में भी हो, और इस फील्ड में, इस कार्य में, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. फेमिनिज्म का झंडा लेके अगर आप घूमोगे तो भारत की नींव नहीं रख पाओगे. जहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि कवर करो, क्या पहनो, क्या खाओ, वो नहीं. कैरियर ज़रूरी है, लेकिन कैरियर कंप्रोमाइज़ नहीं करना. बच्चे को कंप्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है. माई वाइफ इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर फ्रॉम IIT. She left everything when my son was born, and she said, till the time he completes class 10th, I'm not going back to work. क्योंकि चरित्र निर्माण उनका काम था, बखूबी किया. Today my son is in engineering. We don't have to look after him or ask him all the time what he's doing, because I know he's doing pretty fine. He's a university topper for the last 3 semesters. Until date without coaching. So, कई डिबेट होते हैं इस बारे में, ख़ास तौर से लेफ्टिस्ट कम्युनिटी या फेमिनिज्म फ्लैग बेयर्स का, कि वुमेन हैव राइट एंड ऑल द. आई एग्री, एवरीवन हैज़ राइट. फॉर मी ए मैन एंड वुमेन डजंट मेक ए डिफरेंस. रामायण भी ज़रूरी है क्योंकि वो धर्म सिखाती है, और गीता ज़रूरी है क्योंकि वो धर्म की स्थापना सिखाती है. तो माता अगर धर्म सिखा रही है, पिता धर्म की स्थापना सिखाते हैं. ये कहना कि माँ का रोल ज़्यादा है, पिता का नहीं है, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा गलत है सोसाइटी में, और युवाओं को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. चरित्र, कंसिस्टेंसी, credibility. Don't work for 2-minute fame. Spend your time on credibility. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 40 साल के बाद आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत में लाइफ में नहीं पड़ेगी. आप जो चाहते हैं आपको सब मिलेगा. लेकिन 2-minute फेम में अगर आप फंस गए और आपने क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज कर ली अपनी,
तो आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम? वाह, सी, देखते क्या हो इंस्टाग्राम पे? हंसी बता रही है, क्या देखते हो? यही 2 मिनट फेम मैं बोल रहा हूँ। I'm sorry to say I have seen some reels, 30-second reel, you drop everything, shake your body, you have 10 million followers. What is the value you have added to society, your nation, your family? पैसा मिल रहा है, नो डाउट। सवाल यहाँ यही आता है चरित्र का कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या क्रेडिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज सोशल मीडिया पे हूँ, ट्विटर ने, आप सब जानते हैं, ट्विटर ने मेरे को निकाल के बाहर फेंक दिया था, ठीक है ना। टेलीग्राम पे लिखना शुरू करा। 60,000 लोगों का परिवार है। 60,000 में से 27-28 हज़ार लोग रोज़ हर पोस्ट पढ़ते हैं, जो ट्विटर से ज़्यादा है काफ़ी मायने में। मैं अगर ना भी लिखूं और आपके बीच में खड़ा हूं, तब भी आप लोग मुझे सुनने आओगे। लेकिन 2 मिनट फेम वाले, क्या क्रेडिबिलिटी उनकी? एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गलत चीज़ें हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, सही चीज़ों में पेन होता है, थोड़ा समय लगता है। फिर वहीं बात आ गई, वहाँ धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। धैर्य का एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 2014 में आपने अपने मोटे भाई को दिल्ली भेज दिया था, हमारे सिर पे बिठा दिया था गुजरात से। सारे इकट्ठा रहे हिंदू तैयार हो गए, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ। किसने कहा? किसी ने कहा ऑर्डिनेंस लाओ, राम मंदिर बना दो, डिक्लेयर कर दो। नहीं करा। बहुत गालियाँ पड़ी, मौलाना मोदी, सेकुलर मोदी, मुसलमानों को अपीसमेंट कर रहा है, ये हिंदू, हम सोच के लाए थे हिंदू का ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करा। (2019) का चुनाव होते ही राम मंदिर का जजमेंट आ गया, मंदिर बन के अगले साल तैयार हो जाएगा। वो जो 5 साल गालियां सुनी और अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए, वो ही धैर्य है। क्योंकि आपकी प्लानिंग में पब्लिक इंक्लूड नहीं होती है, और हर चीज पब्लिक को अपनी स्ट्रैटेजी समझानी भी जरूरी नहीं होती है। लेकिन उन 5 सालों में आपने जो उस कार्य को करने के बॉटलनेक्स थे, वो आपने शांति से चुपचाप खत्म करे। वो असली क्या थे? OIC, 57 इस्लामिक राष्ट्र, जो आपका राम जन्मभूमि मंदिर बनना नहीं देते थे, ना वो 370 हटाने देते। तो आपको एक चाणक्य की भूमि में, रोल में, आपको पहले वो किले को फतेह करना था। जब आपने सब साध लिए तो एक झटके में हट गए, बन गया। एक भी लाश गिरी? 370 हटी, एक लाश गिरी। राम मंदिर बना, एक लाश गिरी। सोचो अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू होता तो क्या होता? कितने राइट्स होते? तो गालियां सुनते उसको इग्नोर करना, अपने रास्ते से विचलित ना होना, यही चरित्र बताता है। यही वो सही चरित्र है।
कि आपका उद्देश्य आपके राष्ट्र के लिए है। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप अपने रास्ते से विचलित ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होते हैं। आप लोग मुझे ट्विटर से कौन लोग फॉलो करते थे ट्विटर के ज़माने से? अरे बाप रे, इतने सारे! तेरी, मैं तो सेलिब्रिटी हो गया भाई। आपने देखा है ना मेरे पे किस तरह के एलिगेशंस लगे? 6 राउंड गोलियां भी फायर हुई, चरित्र हनन भी हुआ, माता पिता का भी चरित्र हनन हुआ, पत्नी का, बेटे का भी चरित्र हनन हुआ, फ्रॉड बताया गया, पैसा गबन करने वाला बताया गया, हर चीज करी गई, सारी कोशिश कर ली। हिला भाई मुझे, मैं लिख के दे रहा हूं, जिन लोगों ने वो किया ना, डाइस पे आ जाएं। अगर 10 लोग भी इस हॉल में बैठे रह गए तो बहुत मुश्किल होता है ये रास्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग यही रास्ता होता है। रेनबो तभी निकलता है जब बारिश के बाद सूरज आता है। सो टाइम तो मुझे पता नहीं सर, आई एम ऑन टाइम। सो मैं बहुत सरल शब्दों में बात करता हूँ बच्चों, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको केवल एक मैसेज देना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, यूथ रोल इन न्यू इंडिया। भारत आज उन लोगों की तरफ देख रहा है जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की तरफ देखने के लिए देख रहा है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ देख रहा है जो कदम से कदम मिला के भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जा सके। हम लोगों का समय पूरा हो गया है, हम अब मेंटर करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए स्वागत है आप सबका, लेकिन यहाँ से आगे के भारत को आप लोगों को लेके जाना है। चरित्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी मूल मंत्र है, इसके अलावा चौथा कोई शब्द नहीं है। ये आपके कैरियर को शेप करेगा, ये आपकी लाइफ को शेप करेगा। और जो मदर्स हैं या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, जो आगे फ्यूचर में मदर्स बनेंगी, उनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो दुनिया में शोर है फेमिनिज्म का, कंज्यूमरिज्म का, उसमें ना भटके। पड़ोसी से कंपटीशन मत करो। किटी पार्टी में कौन क्या ड्रेस पहन के आई है, आप अपनी ड्रेस रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो कंपटीशन मत करो। क्या क्या मिलेगा उस कंपटीशन का? क्या मिलेगा बताइए आप? वैल्यूज लाओ समाज के। आप लोग क्या, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोग अपने एरिया में यंग बच्चों के साथ बैठिए, यूथ के साथ बैठिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। यह आपका बहुत बड़ा योगदान है भारत में। सास बहू में ज़्यादा इंगेज मत होइए, यूथ के साथ ज़्यादा इंगेज होइए। और यूथ आज देख रहा है कि हमें भी कोई मेंटर करने वाला मिले, हमें रास्ता दिखाने वाला मिले, क्योंकि डिल्यूजन्ड है दुनिया। एक छोटा सा काम करें, दोनों हाथ आगे करो सब लोग, कर लिया? अब जब मैं बोलूंगा गो, तब आप ताली बजाना। मैंने गो बोला नहीं, पर मैंने गो तो नहीं बोला ना। पता है यही प्रॉब्लम है, हम
पूरी बात सुनते ही नहीं है। हम जजमेंटल हैं। मैं टीवी न्यूज़ क्यों नहीं देखता? इसीलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि आप 50 हैंडल्स पढ़ रहे हैं, 20 यूट्यूब देख रहे हैं, 10 चैनल देख रहे हैं, शाम को 6 बजे के बाद मछली बाजार शुरू होता है टीवी पे, आप सब बैठ गए। उन्होंने जो बोला आपने मान लिया। अभी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करा पार्ले जी की एक स्टोरी छोटी सी, ठीक है? सारे कमेंट करने लगे, वो पार्ले जी आई ट्राइड फ्रॉम चाइल्डहुड, कोई चाय में डुबो के खा रहा है, कोई। आपने पढ़ा वो मैसेज क्या था? वो मैसेज पार्ले जी का था, लेकिन पार्ले जी के बारे में नहीं था। वो था सेलिब्रेटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये एक्सरसाइज हुई थी। जो क्रक्स को समझो, डोंट जस्ट गेट फ्लो ऑफ पीपल, क्रक्स को समझो। जब आप वो क्रक्स समझोगे तो आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट होगे, आपको मेरे जैसे इंसान की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपको हर चीज समझाऊं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम वहां है। राम मंदिर की प्रॉब्लम क्या थी? राम मंदिर तो 1991 में बन जाना था, 92 में। राम मंदिर की प्रॉब्लम थी सुब्रमण्यम स्वामी। कहोगे कैसे? कोर्ट में केस लेके 91 में कौन गया था? केस क्या था? राइट टू वर्शिप। इशू क्या था? लैंड डिस्प्यूट। तो आप तो केस ही उल्टा लड़ रहे थे। इसीलिए सीजीआई ने कहा भाई साहब बाहर बैठिए, मोदी जी ने हुक्म दिया है 1 साल में हमें केस निपटाना है, दिवाली हमें वहीं करनी है। गौरव प्रधान ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि दिवाली अगले साल हम राम मंदिर में मनाएंगे। तो आप जरा बाहर बैठिए, हमें निपटाने दीजिए। निपट गया। जब तक हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम के ड्रिल नहीं करेंगे, उसके रूट में नहीं जाएंगे, हमको सल्यूशन, कभी स्टेबल सल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें सल्यूशन के लिए प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन करना है, उसके रूट एनालिसिस करना है, उसके बॉटम पे जाना है। जब हम बॉटम पे पहुंचेंगे तो सल्यूशन वहां रखा हुआ है। एक छोटी सी चीज और बोल के मैं खत्म करता हूं। अडानी सेकंड रिचेस्ट बन गया बिकॉज मोदी जी का आशीर्वाद है। यही बोलते हैं ना सब? यही बोलते हैं ना? गलत। अडानी ने वो करा जो भगवान श्री राम ने करा था। वानर, लंगूर, जंगल में जो भी मिल गया सबको ले लिया अपनी सेना में, और सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव बना दिया। गीता में भी, महाभारत में भी आपको ये सीखने को मिलेगा। कौरव की सेना बहुत बड़ी थी, 7:11 का रेशियो था। एक से एक महारथी, दिव्यास्त्र प्राप्त लोग, मतलब क्या कहना चाहिए, जिनको वरदान मिले हुए हैं, लेकिन हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो सब अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए। पांडव का ऑब्जेक्टिव एक था, इसलिए वो जीते। अडानी ने क्या करा? अडानी ने अपने बिजनेस को भारत के, आने वाले भारत की जो ग्रोथ कर्व है उस पे अलाइन कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पोर्ट चाहिए, पोर्ट में इन्वेस्ट करो।
जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स टीम में, टीम मेंबर अपने ऑब्जेक्टिव टीम ऑब्जेक्टिव के लिए अलाइन कर लें, जब भारत के बिजनेस हाउसेस अपने ऑब्जेक्टिव भारत की ग्रोथ स्टोरी से अलाइन कर लें, तो सक्सेस तो डिफॉल्ट है। तो भाई साहब फ़ोन पे गाने सुनने हैं तो बता दो जोर से, मैं भी सुनता हूँ। लेसन टू यूथ, align your objectives with the nation. जो भी कार्य करो, जो भी फील्ड में जाओ, इंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच करो या जॉब अप्रोच करो या कैरियर की तरफ देखो, अपना लाइफ को भारत के साथ अलाइन कर लो, नए भारत के साथ। और आप मुझे भक्त बोलिए, कुछ भी बोलिए, कितना भी अब्यूज़ कीजिए, मॉक कीजिए, मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारत को आज़ादी 26 मई 2014 को मिली थी। उससे पहले भारत आज़ाद नहीं था। और आज आप देख लीजिए, उस आज़ादी का नतीजा ये है कि अमेरिका में बैठ के अमेरिका के कान के नीचे 2 बजा के हम चले आते हैं। और अमेरिका कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, come again please. So with that I end my short speech. Thank you Ahmedabad, thank you AMA for giving me the opportunity. I am open for any questions you want to ask. Feel free, anything you want. Just should not be abusive question, just remember that. Yeah. हेलो सर, लास्ट टाइम वहाँ पे आया था, पूछ नहीं पाया था, इसलिए आपका पीछा करता करता यहाँ तक आ गया। थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। यस प्लीज। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा मैं तो टेलीग्राम में फॉलो करता ही हूँ। किसी और को अपॉर्चुनिटी मिले, अगर उसके अलावा क्वेश्चन है तो आई विल कम बैक। थैंक यू सर। Good evening, sir. Sir. Appreciated for your first short speech. Very, it is already अंदर हमारा गले के अंदर सीरे की तरह उतर गया। सीरा खाते हैं ना? जी सर। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। The thing is, problem is that if Narendra Modi Sahab was not, is not come as a prime minister, what would have been the future of India? Sir, first of all, I don't want to answer it politically. I would rather answer it academically. Academically, all the institutions in the world has already declared India into Fragile 5. If the previous dispensation would have repeated, the Fragile 5 would have been a big reality, and maybe Fragile 3 or Fragile 1. But what he did after coming back, the first thing, जैसे मैंने अभी बताया, the last corner of your house which you vacate is the kitchen, and the first corner in the house which you habitate is the kitchen. Same for the nation. The first thing need to be done is economy. So the focus was purely on economics, how to revive the industry, how to revive the NPAs, how to revive, how to cut down the parallel economy which was not paying any tax. It was a cash-based economy running. So government was not getting any taxes, so cannot invest,
cannot do social schemes, and a lot of other factors. So the first step was to pick up the economy and put it back on track. At the same time, ensure that your charitra of Bharat also prosper. And the charitra of Bharat is agriculture. Economy doesn't matter if the food is not on the table. And to have a house where a kitchen, an economy, and a food you cook there, the third thing, very most important, is the security of your house. So the focus was farmers and Fauji's. And if you believe in Kautilya Arthashastra, or if you read Kautilya Arthashastra, because unfortunately this nation had been following Western model of economics for last 75 years, whereas India is not America, India is not Europe, it is a totally different nation, unique nation in the world. Every 100 kilometer, 200 kilometer, the rituals, the fooding habit, the dressing sense, everything changes. You cannot have a Western model here. So you need to adopt Kautilya Arthashastra. And Kautilya Arthashastra is, rather than giving a stimulus package to businesses, which will use it to offset their losses, it is better to give the money to bottom of the pyramid and generate a demand. When demand generates, the businessman will take a loan from institution, banks and other, and the middle class would be hired to produce more. And then you have a consumer which is generating the demand. So the entire economic cycle starts. So if your mool question, if it had been repeated, Sri Lanka was only long back. I mean, we would have been an example in the world before Sri Lanka or Pakistan. Next. Please. Sir. सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी एक गुजरात का मैं बता सकता हूँ, अहमदाबाद का, कि एक ट्रेंड चला है कि यंग बच्चे सारे फॉरेन जा रहे हैं, और आज जो हम बहुत गर्व करते हैं फलाना इंडियन ओरिजिन का है, ये हो है, वो सारे इंडिया के पैसों से पढ़ के गए हैं। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? जैसे भी आज अहमदाबाद में भी बहुत सारे, कहीं पे भी जाइए आप, कनाडा चले जाते हैं बच्चे, वहाँ जाके उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर आफ्टर 20 years? सर मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मेरी हमेशा से लड़ाई रही है उन लोगों के साथ जो बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर दुनिया पे राज करना है तो ब्रेन को तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, घर में बैठ के तो नहीं होगा, झंडा हिलाने से यहाँ तो नहीं होगा ना। तो अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं है, मैं भी बाहर गया था, ठीक है, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं वापस आया। लेकिन अगर आज के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, क्योंकि यही वो ब्रेन ड्रेन था जिसकी वजह से आज आप बोलते हो कि अमेरिकन कंपनीज के सीईओ तो इंडियंस हैं। अगर ब्रेन ड्रेन नहीं होता तो सीईओ इंडियन होते नहीं होते ना। तो जो चीज़ आपकी आज प्राइड है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्रेन ड्रेन था? और भारत में बहुत ब्रेन है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। 3-4 लाख इंजीनियर पास होता है हर साल, सब तो अमेरिका नहीं जाते। आज आपने वो फर्टाइल ग्राउंड भारत में तैयार किया है कि लोग नासा छोड़ के इसरो में काम करना चाहते हैं, लॉकहीड मार्टिन छोड़ के डीआरडीओ में काम करना चाहते हैं, एचएएल में काम करना चाहते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। So sir, I don't believe that going abroad and working there is anything bad. Please, if you have an opportunity, go it, but don't be a coolie. Don't be a tech coolie. $20 per hour वाला मत बनना, बस केवल इतना बोलूँगा। ये हुआ आपके क्वेश्चन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट, आपने जो बोला पीएम बनने की बात, ऋषि सुनक पे आपका इंडिकेशन है।
ऋषि भारतीय नहीं है, भारतीय मूल का है। सनातन को वो फॉलो करते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। राष्ट्र से मत देखिए उसे। सनातन तो यूनिवर्सल है। अफ्रीका में फॉलो कीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना यहां आ गए। ऋषि की कर्म भूमि और मातृभूमि ब्रिटेन है, भारत उनकी आध्यात्मिक भूमि है। कम से कम आपको तो ये खुश होना चाहिए वो भारतीय मूल के या सनातनी होने के बाद भारत से लिंक करके देखते हैं ना। हमारे यहाँ तो बहुत सारे तोपची हैं जो मक्का मदीना जाते हैं, उनको भी हिंदू बोला जाता है। यहाँ पर वो झंडा लेके पता नहीं क्या क्या नाचते रहते हैं। तो उनका तो मूल चरित्र ही नहीं है कहीं, हमारा कम से कम मूल तो है। तो सर बाहर जाना कोई बुराई नहीं है, मेरे बच्चों को यही है, जाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि विदेश में अब सूर्य अस्त हो रहा है। एम्बिशियस हो, अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करना जानते हो और मेहनत से डरते नहीं हो, तो भारत में आज इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। American dream is over, it is the Indian dream which has started now. And it is going to last for next 50, 70, 100 years maybe. My son got an admission at MIT. And I asked him, where you want to go, MIT or IIT? He said, पापा पागल है, वहाँ डॉलर खर्च करेंगे, यहाँ इंडियन रुपए में काम होता है ना, अपन यही है। क्या करूं, बच्चे भी ऐसे ही हैं आज के। नेक्स्ट। हेलो। हाँ सर। सर मैं आपसे दो है, एक तो रोल ऑफ यंग बैठे हुए हैं। मैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर करीब 15 साल अपनी ज़िंदगी में काम किया, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इवन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे भी काम किया और यहाँ भी किया है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया सर, बहुत पैदल चलना पड़ता है यार। सर मैंने तो खाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे किया है, पार्ट ऑफ इट, जिसके बेसिस पे आप सब रहते हैं वहाँ पे। बहुत पैदल उसके बिना चलना तो चलना होता नहीं साथ में। मोदी जी को बोलना पड़ेगा कोई बैकडोर से कोई ऐसा पद दे दो जो गाड़ी में बैठ के सीधा फ्लाइट तक पहुंचाए। अरे मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरी बहुत बड़ी टीम थी और मैं अपनी टीम को एक ही बोलता था कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपने करेक्टर पे काम के साथ साथ अपने काम के साथ में न्याय से काम करो, सिंसियरली काम करो। काम से ही होगा और आप तेंदुलकर की तरह खेलोगे, बाकी चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। तो मेरा बच्चों को यही है, ज़िंदगी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के बाद में मैंने कभी भी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली। मेरे जीवन के अंदर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा बैंक में है, एक पैसे का ब्लैक नहीं है, एक पैसे का कैश नहीं है। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान सकते हो, उस स्ट्रेंथ पर खेलो, बाकी चीज़ें आपके पीछे पीछे भाग के आएंगी। एक बात नहीं, कछुए खरगोश की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? सभी ने सुनी है। क्या सुनी है? कि जी एक रेस हो रही थी, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, सो गया, कछुआ काम करता रहा और जीत गया। यही सिखाया है ना? आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जब कछुआ जीत गया तो खरगोश ने कहा भाई एक रेस फिर से होगी, और ठीक है, फिर से रेस हुई। खरगोश भागा, कछुआ भी भागा, खरगोश जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि कछुए ने खरगोश ने पीछे की हुई गलती को दोहराया नहीं, बल्कि गलती से सीखा। गलती करना बुरा नहीं है, क्या गलती सीख रहे हो? ये युवाओं के लिए लेसन है। स्टोरी खत्म नहीं, अभी और आगे। कछुआ बोला भाई इस बार तो तू जीत गया, एक रेस और लड़ते हैं। बोला ठीक है।
पर नए रास्ते से लड़ेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। नए रास्ते से दौड़े, रास्ते में पड़ गई नदी। अब खरगोश तो रह गया, कछुआ निकल गया, जीत गया, ठीक है। तो अपनी कमजोरियों को समझा ही नहीं आपने। बिना कमजोरी और स्ट्रेंथ जाने कमिटमेंट मत कर देना कभी लाइफ में। नहीं, जैसे आजकल पार्क में बैठ के बोलते हैं मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, क्या तोड़ लाऊं। अबे कॉफ़ी देने के पैसे नहीं है, चांद तोड़ लाऊंगा, कॉफ़ी तोड़ लाऊंगा। ऐसे कमिटमेंट मत करो। मैंने अपनी वाइफ को आज तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करा। मैं भाई, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं ऐसे वैसे कमिटमेंट नहीं कर सकता। स्टोरी खत्म ना, अभी एक और है। खरगोश बोला भाई फिर से चलते हैं, इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन अब टीम बना के दौड़ेंगे। तो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, फटाफट कवर हो गया। पानी आया तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया और नदी पार हो गई। अपनी वीकनेस अपने टीम मेंबर में, अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ जोड़ो, तो रास्ता जल्दी भी तैयार होगा और सक्सेस भी मिलेगी। टीम के लिए इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप अपनी वीकनेसेस दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ जोड़ लीजिए, एक होके काम कीजिए, फिर देखिए नतीजे तो बिंदास होंगे। मोदी ने क्या करा? मोदी की वीकनेस है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई। जयशंकर की एक स्ट्रेंथ थी जो यूटिलाइज नहीं हो रही थी, उन्होंने जयशंकर की स्ट्रेंथ यूटिलाइज करी, वो जाके कान के नीचे बजा के आते हैं अमेरिका के। एक नाम सुना होगा, एमजे अकबर। एमजे अकबर में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी जो इतने सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। मोदी ने कहा आजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर, तुम्हारे कार्य क्षेत्र मिडिल ईस्ट, काम क्या करना है? ओआईसी का चीड़-फाड़ करनी है। एमजे अकबर ने ओआईसी में चीड़-फाड़ करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा था कि सुषमा स्वराज पहली महिला और भारतीय महिला जिन्होंने ओआईसी को एड्रेस करा। और जब ओआईसी की चीड़-फाड़ एमजे अकबर ने कर दी, तो एमजे अकबर को कैसे रोका जाए, तो 40 साल पुराना मीटू उठा के लाए उसके लिए। मीटू उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, एमजे अकबर के केस के बाद मीटू खत्म हो गया, आज कोई पूछता भी नहीं है। मीटू का मुख्य उद्देश्य एमजे अकबर को अपनी जगह से हटाना था, हटे। तो स्ट्रेंथ आज जो राम मंदिर है, जो 370 है, जो ट्रिपल तलाक है, एक भी देश में दंगे नहीं हुए, लाशें नहीं गिरी, सब खुश हैं, वो कम्युनिटी भी खुश है, आप भी खुश हैं, सब खुश हैं। इसकी जो रूट है वो एमजे अकबर है। कभी चाइनीज बैम्बू प्लांट करो, बीज डालो, कुछ निकलेगा ही नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ निकला ही नहीं। भाई बीज कर क्या रहा है अंदर बैठ के जमीन के? फिर 5-6 साल बाद निकलना शुरू करेगा तो इतनी तेज निकलेगा कि चढ़ता चला जाएगा। तो ये 5 साल कर क्या रहा था? वो बीज 5 साल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जो आगे ग्रोथ होनी है उसको सस्टेन करने के लिए जब तक जड़ें नहीं होंगी तो वो गिर जाएगा महल। अगला 1000 साल तक राम मंदिर रहे, 370 वापस ना आए, भारत प्रगति के रास्ते पे रहे, सारी कम्युनिटियाँ खुश रहें, सबकी प्रगति हो, उसके लिए 5 साल का होमवर्क था। और इसके लिए बहुत विभिन्न तरह की अपनी टीम में स्ट्रेंथ बनाई गई।
एक दिमाग अरुण जेटली जैसा, एक दिमाग एमजे अकबर जैसा, सुषमा जी जैसा, राजनाथ सिंह जैसा है, मनोहर पारिकर जैसा, ये लेजेंड्स हैं। अगर अरुण जेटली अमर सिंह के साथ ना आते और उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती तो यूपी का चीर फाड़ नहीं होता, और यूपी का चीर फाड़ नहीं होता तो महाराज जी नहीं आते, और महाराज जी नहीं आते तो हम जैसे बोलते अरे भाई तुम हो गए गुजरात के, हम भी यूपी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दूसरा तो सिर्फ आपके लिए है कि मैं आपको 2013 से फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर जी पे। सर। आपकी हर पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ, सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ पढ़, आपके यूट्यूबर्स के ऊपर जो भी आपने दिए सब सुने हैं। बहुत पुराना एडमायरर हूँ आपका, लेकिन लास्ट टाइम नहीं आ पाया था बिकॉज मेरी यहाँ पे आईआईटी रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो हमारा 40वां एलुमनी का उस दिन वो फंक्शन था, सेलिब्रेशन था, आपने बताया था मेरे को, और 40वां सेलिब्रेशन तो मैं आ नहीं पाया। मुझे को पता है उस दिन रुड़की का भी आईआईटी रुड़की का भी मीट था। हाँ, मैं उसमें नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं सर। और एक ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अपनी ज़िंदगी के अंदर में, जब आपका आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, कि भाई आपने क्या कैटरेक्ट का लेंस रिप्लेसमेंट करवाया है, जी तो आपने आंसर भी दिया था, उसके बाद मैंने अपना करवाया। दैट इज़ द ओनली थिंग थैंक व्हिच यू आई वेरी कैन मच से। सर। आई रीड एवरी ऑफ योर पोस्ट, ऑलमोस्ट 99%। आपको बिलीव नहीं होगा, जब वो डॉक्टर मेरे काट छांट कर रहा था ना आँख में एनेस्थीसिया लगा के, तो मैं डॉक्टर को जोक सुना रहा था सर और वो बोल रहा था भाई हल्के बोल, हंसा रहा है, हाथ हिल जाएगा। मैंने कहा मस्त रहे। वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग, सो आई नो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में इतना आई टॉनिक लिया है कि कैटरेक्ट हो गया। सर वही मेरे साथ में भी है। आज मेरे लंग्स अब मैंने आई टॉनिक लेना बंद कर दिया तो मेरी आंखें सही हैं। मेरे 70% मेरे लंग्स भी आजकल काम करते हैं, बस 30% तो डैमेज हो चुके हैं साथ। भगवान बहुत एंड आगे। मेरा एक और कनेक्शन है आपका गाजियाबाद से, बिकॉज माई इन लॉज आर फ्रॉम गाजियाबाद एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम देयर। थैंक यू सर मैं भारत का हूँ, गाजियाबाद का नहीं। क्वेश्चन बच्चों से सवाल लेने हैं हमें। Good evening, sir. बेटा बोलो। It's a technological question actually. यस प्लीज। I'm in second year. I'm doing CAC right now. And I was thinking, what are the scopes for AI and cybersecurity in India's future? बेटा cyber security and AI have the future. They are the future. The future wars are going to be fought on cyber. Rest everything comes secondary. The military and army and your navy, air force comes secondary. Cyber is the primary one. So your choice is very correct. Cyber security is the area to be in. Cyber security is going to be more AI enabled. So having an advantage of AI is always good. If you sometime get chance as a minor, do pick up a data science just for the introduction, not on an advanced stage, but just to understand the concept of data science. That would help you. But future is there, beta. Don't even worry about it. My son is in CSE only. He's doing data science, AI and cyber both. And the second one is a philosophical question. Sorry. Yes, please. How do you find purpose of life? How do I find? Purpose of life. I mean, you are achieved and you have found your purpose as Very improving. simple, beta. A dog may be on a street, get his 2 meals a day. We also get our 2 meals a day. Are we different from dog? Yes. Why we are different from dog? Because we have a purpose in life. What is our purpose in life? To make this place a better one, to help others, to serve the community, to serve the nation which has given you so much that you fly all over the world. When I came back to India, the thought in my mind was, I'm going back to serve my nation which has given me everything, which made me who I am in 29 years.
The nation which made my signature an autograph, don't you think it is my responsibility to serve the nation? That is what I am doing now. So I'm inspiring youth, I'm inspiring people. People say their outlook have changed, the way they see the things today after reading me, and I think that's the best compliment I can get, and that is the best reward and returns I get. Money is not everything. So purpose in life is always give back to the society. That is the ultimate purpose. Follow your dharma, whatever you are. Right? I am not binding you to a specific faith, but whatever you are, just follow your dharma. Dharma is very simple. People talk about rights. Like yesterday I posted something, some people started shouting about our rights, right of a woman, right of a lady. And my simple point was, we all talk about right. What about the duty? So the purpose in life is also duty. That differentiates us with animals. Huh? Thank you. Thank you, sir. Yeah. Sir, India is growing very fast. The GDP of India is probably on the fifth stage currently in global perspective. Sir, talking about India, we are having a rapid growth, but I would like to understand from you that what is the contribution of startup in that economic growth of India, and how shall we quantify it down the line for 5 years? The contribution of the startups, if you really see on a broader scale, when you start any organization or a company or a venture, let's say you start let's low down, I'm not talking about companies that has a high employment, but let's say you are just some food stall. You employ 2 people to work with you. You have a land in a village where you do your farming. You take out a small piece of land, construct 2 houses, 2 rooms with a good toilet, define it as village tourism, hire 2-3 people, a cook and a cleaner. You have provided employment. These people will, when they earn, they will spend, the consumption will increase, the GDP will increase. But GDP is not the only way to see Indian growth story. I have always argument with the Harvard economist, Hayward economist and all those people. When I drive on a highway and I want a गन्ने का जूस, रास्ते में हाईवे पे मिलते हैं ना गन्ने के जूस वाले, खेत से गन्ना काट के लाए, आपको जूस पिलाया, आपने 20 रुपए दिए, निकल लिए. क्या वो ट्रांजैक्शन जीडीपी में रिकॉर्ड हुआ? ऐसे कितने ट्रांजैक्शन हैं भारत में? आप बी क्लास सिटी में चले जाइए, सी क्लास छोटे शहरों में चले जाइए, खेत से लोग सब्जी काट के लाते हैं, वहीं बेच देते हैं. जीडीपी में गया? वो तब जाएगा जब मोटा भाई के रिलायंस फ्रेश में सामान जाएगा, तब वो जीडीपी में ऐड होगा. तो भारत एक विविध नेशन है. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी इज फाइन, बट इंडिया विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 20% कैश. यू कैनॉट रूल आउट कैश इन इंडिया. So, how do I see the perspective? Top 3 economies in the world. Why top 3 economies? I can define it in a very simple term. The number 1 economy in the world today, which is US, is a consumption-based economy. It is sitting on a debt of $30 trillion credit card debt. Buy it now, consume it now, extract it now in the morning, pay after 6 months. ठीक है ना? The second economy today in the world is China, which is purely manufacturing based economy. Now if the consumption is reducing in America today, demand will go down. Who will suffer? China.
what in the last 8 years India has done, we were consumption based economy. दिवाली की आ रही है तो लाइट्स चाइना से आ जाएंगी, गणेश जी चाइना से आ जाएंगे, सारी चीज़ें चाइना से आ जाएंगी. We were consuming. But in last 8 years, we have converted ourselves to a manufacturing base. 22 phone manufacturers are there in the country. Most of the auto manufacturers are here in this country. The manufacturing is going leaps and bounds. But the beauty of India and uniqueness of India is that it is not just growing manufacturing, it also has the capacity to consume it. So we are not dependent on a second nation for any prosperity. This is why I say recession is a word for Western economy. It is not for India, which is Kautilya Arthashastra. And India is blessed to have, like, you know, the automobile engine has a spark plug. India has 15, 16 kind of a spark plug. The biggest spark plug is Diwali. From a diya guy making diya to the guy making a 15 crore bungalow or a house, everybody made money. Record sale of cars, record sale of real estate, record sale of everything. Gold. खाकड़ा जलेबी खा गए 300 करोड़ का यार तुम लोग. जो देश का एक स्टेट 300 करोड़ का खाकड़ा जलेबी खा जाए 14 घंटे में, उस देश में कभी रिसेशन आएगा? और अभी तो दिवाली खत्म हुई है ना, अब शादियां आ रही हैं. ये दूसरा इकोनॉमिक इंजन है. वो खत्म होगा तो दिवाली होली आ जाएगी, उत्तरायण आएगा, और उसके बाद वो चलता. तो हमारे भारतीय इकोनॉमिक इंजन में इतने स्पार्क प्लग लगे हैं कि डंडा मार के रोकना चाहो तब भी नहीं रुकेगा. So don't worry about the GDP, right? This is only a Western concept. Thank you so much, sir. It was a great evening. ये हमारे युवा लोगों के पास सवाल नहीं है या कंफ्यूज हैं? सवाल है ना सर? सवाल है. बोलिए सर. सर मेरा नाम अनंत है और मैं टू बी पेरेंट बनने वाला हूँ. अभी मैं सिंगल हूँ, बट डेफिनेटली 2-3 साल में मैं पेरेंट बनने वाला हूँ. बड़ी अच्छी प्लानिंग है, गुड. डेफिनेटली बनना ही है सर. मेरा क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ये है, आपने वो पेरेंट बनने के लिए जो दूसरा चाहिए वो ढूंढ लिया या उसको भी अभी पेंडिंग में? ढूंढ लिया. ढूंढ लिया, गुड. आपने चरित्र, क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छा उपयोग किया है. जैसे मैं आपको बताया कि मैं सिंगल हूँ, मैं जिसके साथ मतलब शादी करना चाहता हूँ, उसके मम्मी पापा या आज का हमारा पूरा पेरेंटिंग का जो सिस्टम है, वो पेरेंटिंग का सिस्टम हम जैसे यूथ को जज करते हैं विथ आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आपके पास घर है कि नहीं है, आपके पास आप कमाते कितना हो. बट एट द एज ऑफ 28 उनका एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो या हमारे पास एक खुद का घर हो. इज इट फेयर ऑन अ यूथ? No, it is not fair. Second, asking to everybody who is a parent here, अगर आपको अपनी बेटी का शादी अगर बेटे से कराना है, फॉर एग्जाम्पल I'll not say दामाद but I'll say मैं बेटे. आपका क्वेश्चन समझ गया. लेट मी आंसर दिस. हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 साल हो गए मेरी शादी को, होने वाले हैं, मतलब 1-1.5 महीने में. जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी, मैं अपने इन-लॉज के पास गया और मैंने उनको बोला मेरी जॉब जा चुकी है, सो यू आर मैरिंग योर डॉटर टू एन अनएम्प्लॉयड पर्सन. जवाब पता है क्या था? तेरे से शादी कौन कर रहा है, ये तो 2 परिवारों का मिलन है. आज की प्रॉब्लम ये है कि
हम 6 महीने लिव इन रिलेशनशिप में टेस्ट करते हैं कि हमारे वेवलेंथ मैच हो रही है नहीं हो रही है। फंडामेंटल्स हम भूल चुके हैं परिवार में कि अगर वेवलेंथ मैच हो गई तो शादी का तो मजा ही नहीं है भाई। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव अलग साथ ना हो तब तक अट्रैक्शन तो नहीं होता ना। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो डाइवोर्स बढ़ गए। सर अगर आपके होने वाले गाड़ी बंगला घर ये सब पे हैं ज़्यादा एविडेंट, तो मेरे ख्याल से अभी वुड बी पेरेंट का सपना छोड़ के थोड़ा नया रास्ता देखने की कोशिश कीजिए, वो शायद ज़्यादा आगे जाएगा। क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में जो एक कॉमन चीज़ थी बस केवल एक थी कि हम दोनों इंजीनियर हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं पहाड़ पे जाता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, मेरी बीवी कभी लटक लेती है मेरी जीप में, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि हमें यहाँ एक्टिविटी करनी है, बंगी जंपिंग, ये जंपिंग, वो जंपिंग। मेरा क्या है, मेरी गाड़ी में एक चेयर पड़ी हुई है, इजी चेयर, मैं खोल के बैठ जाता हूँ। मेरा वेकेशन वो है, एक जगह बैठ के आराम से एक सिगार निकालो, एक सिंगल मॉल्ट का ड्रिंक लो, एंड अ बॉनफायर एंड एंजॉय द लाइफ। आत्म क्या कहते हैं उसे, मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करो, ज्ञान और लो, सोचो विचारो। तो हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन हम इसलिए साथ हैं क्योंकि हमारे बीच में कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वो मेरे शांत स्वभाव को एंजॉय करती है, मैं उसकी चुलबुली हरकतें, इस उम्र में कूदना, मतलब यार टांग तोड़ी तो जुड़ेगी भी नहीं। Money is not the criteria to get married. Materialistic thing नहीं होनी चाहिए, विचार मैच होने चाहिए। सर बट हम आज के सोसाइटी में तो ऐसे ही रहते हैं ना कि हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, टू बी पेरेंट्स या होने वाले सर जो भी वही तो मेरी कोशिश है ना कि इस सोसाइटी को, आज के बच्चों को ये चीज़ समझाएं, वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में मर्सिडीज लेने का वो मज़ा नहीं है जो 40 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का है। सर 40 साल की उम्र में जो इंसान मर्सिडीज चलाता है ना, वो एक ऑरा अलग होता है, और 25 साल की उम्र में जो मर्सिडीज चलाता है ना, वहां मेंटालिटी दूसरी होती है। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे सेलिब्रेटेड मोटिवेटर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बड़े डंका चोट मार के बोलते हैं 25 साल में अगर मर्सिडीज नहीं चलाई तो लाइफ क्या है, बर्बाद है। शायद सनातन पे ज्ञान देना तो सबको आता है, लेकिन उसको रिलेट करके समझाना। भगवान श्री राम पहले दिन अगर राजा बन जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। वो 14 साल का स्ट्रगल था जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। या 25-26 साल की एज में बाइक पे घूमो यार, गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाल के। आजकल तो वैसी वाली सीटें आती है ना, पीछे वाला ऐसा लगता है ट्रक की हाइट पे बैठा है, सीधा भी बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, जबरदस्ती फेविकोल की तरह चिपकाएगा। मतलब हमारे कॉलेज टाइम में तो हम लोग तो ब्रेक मारते थे उस मोमेंट के लिए, आजकल ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल आ जाता है। Next. Last one. Yeah. Now is the last question. This is the last question. Yeah. Give me the mic, please. Hello. Sir, India has achieved great success in its digital things like vaccination. हम देख लें, इतना digital way में vaccination हुआ है. We can see the UPI things. एंड मतलब एस जयशंकर की जो बात आपने की, मैंने उनका ही एक इंटरव्यू देखा था जो जिसमें उन्होंने यूएस और इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव को कंपैरिजन किया था। सो यूथ सर उस चीज़ को क्यों नहीं मतलब डिजिटल जो इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज़ को क्यों नहीं देख के क्यों उस जगह ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है? जो आपने सर एक एग्जाम्पल दिया इंस्टाग्राम पे जो वो चीज़ हो रहा है, मतलब दैट वाज माय क्वेश्चन सर।
Beta, that is a basic instinct. You get attracted to such videos. हम लोगों पे सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना. वी हैव क्रॉस दैट लिमिट. सो आई अंडरस्टैंड दैट इज. देखो, विद्यार्थी जीवन को तपस्या क्यों बोला गया है? विद्यार्थी जीवन को तपस्या इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. अगर उन समय आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बाकी जीवन में. आपका चरित्र निखर हो जाएगा. हमारे बेटे जी का फ़ोन ख़राब हो गया तो वो छोड़ गए घर पे, नया फ़ोन लेके हॉस्टल चले गए. तो हमारा हम तो काम यही होता है सबके फ़ोन रिपेयर कराते फिरें, तो हमने करा दिया. खुराफाती दिमाग तो अपना पहले ही से बचपन से. तो हमने फ़ोन ऑन करा तो उनके व्हाट्सएप वगैरह सब चालू हो गए, क्योंकि सब वाईफाई पे कनेक्टेड थे. टपाटप मैसेज आने शुरू हो गए उनके इंस्टे दुनिया भर के. तो एक महिला उन पे मैसेज करती है, मतलब बच्ची, उसके बैचमेट, जय आई फॉलो यू एवरीवेयर, आई सी यू एवरी टाइम, आई लिसन योर टॉक, आई लिसन योर सॉन्ग, आई लिसन योर स्टेज परफॉर्मेंस, बट यू डोंट फॉलो मी. भाई साहब ने नीचे रिप्लाई दिया है बड़ा डिप्लोमेटिक, यस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. सो देखो, कहते हैं ना कि जब सच अपने पैरों में जूते पहनता है तो झूठ दुनिया घूम के आ चुका होता है. गलत चीजें जल्दी बाहर आती हैं. आपको मेरे अच्छे काम याद ना हो, लेकिन कोई एक बात हो, कोई एलिगेशन हो, कोई बदनाम करने का चरित्र हो, वो आपको याद रहेगा. दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ का देता हूं. हमारी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, 1000 में से 999 अटैक्स प्रिवेंट कर लेती है. आपको नहीं पता, लेकिन अगर एक चूक हो जाए तो आप पूरी एजेंसी को फेल कर देते हो, ये लिख के अपने सोशल मीडिया में इंटेलिजेंस फेलियर. लेकिन वही एक आतंकवादी 99 बार फेल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक बार पास हो गया तो वो सक्सेस हो जाती है. तो कई बार जब लोग लिखते हैं मेरे भी कमेंट के नीचे इंटेलिजेंस फेलियर, तो सही बात बताऊं, मन करता है पास में बुलाओ, कान के नीचे 2 खींच के मारो और उसके बाद पूछो, तुम्हें पता है बेटा इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, काम कैसे होता है? तो बेटा गलत चीज़ें आसानी से भागती हैं, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए. उन चीज़ों में ना जाओ. अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो. मेडिटेशन करो, अपना पर्पस से रास्ता मत भटकाओ. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. बाकी दिस इज़ अ कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ देयर. सेक्स इज़ द मोस्ट अपीलिंग थिंग. Porn is the oldest industry in this world. So they sell faster, and the biggest industry revenue-wise in this world is porn industry. ठीक है, करते हैं लोग. Make a choice. It's your life. Thank you very much. Now that person, yeah, you are the last. Please, that will be the last question before we express our gratitude. Yeah. 3 short questions. 3. How many years India will take to be 100% literacy with skillful mindset? Second question, is reservation still required in our education system? And third question, how many years our country will be dependent on FIIs, FDIs and FDIs, FIIs and FIIs? I got your point. Your first question,
What is literacy? Degree is a literacy. If degree is a literacy, then how come Delhi appointed a chief minister which is an anarchist? And Bundelkhand and Purvanchal, which is very backward, has appointed a Maharaji. If literacy means degree, then how come the world best economist pushed India into fragile five, whereas a current one who has done his degree in distance learning mode put India on a podium position? So what is literacy? एक किसान को अपनी किसानी में पीएचडी होती है. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ के पीएचडी करने से किसानी नहीं आती है. सो लिटरेसी नीड टू बी डिफाइंड. Kerala is literate. How many IS coming out from there? Is it literate? Right? FII question. India has already crossed the FIIs and now the dominance in market is DII. And because of the dominance of DII, the FII are not able to blackmail the government for a favorable policies. And because of that DII domination, even when the US stocks were blood red, India has marginally hit plus and minus. So the shield was built by Arun Jaitley, which the Harvard economist always say doesn't know economics, but eventually he built the best market today, and the market is growing. What was your third question? Reservation. I've been from the era where we have burned buses on reservation protest in Delhi. I drove the buses from IIT to Ames Chowk and burned it. I am the one who slapped VP Singh, the sitting Prime Minister. And I am also one who has given the blanket to Goswami when he lighted himself. He died few years back. Reservation by then is a huge fault line in India. And this fault line was created only for the purpose of vote bank. How to remove it? It won't be removed now. The relevance of reservation would be reduced over a period of time. I think you need to understand a word Modi said very deeply. It is not the government business to be in the business. And that spells everything. That means the future government as we grow would be smaller, efficient, sharper. Government is also not a recruitment agency. Once these things start coming in, the reservation will start getting diluted. And I can say over the next, not 5 years, 15 years, nobody will talk about reservation. The starting is done. Agniveer, Railveer. There is a program started by Railway of taking people and training. What will they do with them? They will absorb some, the rest for the market. The same Agniveer philosophy. It will start coming in every field of government. PUCs are competitive. Today, the same HAL which couldn't make Tejas for 30-40 years, now rolling out third generation in 8 years.
The same DRDO who never used to do anything, today exporting arms. Once the competitiveness comes in with PUCs, the reservation will start diluting. And there is a concept that, okay, in IIT, in MBBS, in NEET, and reservation takes a lot of seats. I agree it takes a lot of seats. But there is another statistics which you haven't seen. 65% of the reserved people who take admission leave the course in second year. Be it MBBS or be it your in IITs or engineering colleges. That stats need also to be considered. So don't look one side, always look three-dimensional. Reservation, no government can pass a resolution and throw it out in a day. It had to dilute and dissolve into the society. That will happen when the relevance will go down, and the efforts are that the relevance today goes down. The more entrepreneurs comes in the market, the more private manufacturing comes in the market, the reservation point of view is going down and down. If you see even defense production, which is one of the biggest sector, today maximum defense production are by private companies. The quality has overtaken मेरे बाप का राजा. So if you have a quality, fine. ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है. Okay, thank you very much. Friends, I'll just take a minute to express my gratitude, and before that, I'll just request you, there are feedback forms on your seats. You can fill it them, you can leave it on your seats or put it in the box outside the auditorium, just outside the door. So one gentle request, and you'll agree it's been a great take home today. I need not, summarize something. This is something we have all absorbed. But the great take home what is 3 C's, about characters, about consistency, and about credibility. So you want to share something, sir? Sorry, sir? You were saying something? No. Please, yeah. So that is the greatest take home, and such a powerful, I don't know what to call it, a message, a mantra, but if we absorb not only the youth, even people of all ages of life, they absorb this thing in life, it's going to be a wonderful world, not only the country. And that's not just, as he rightly said, I share his thoughts that please don't only look at GDP, there is a quality of life, there is a sanskar, and let us look at the bigger picture. Thank you so much, Gauravji, for this wonderful evening we had with you. Please give him a big round of applause. And thank you all for attending in large numbers. And have a great weekend. Thank you. Thank you. Thank you.